Good evening, everyone. Welcome to today's session. And how excited are we to get back after learning what we learned in the last session? I thought it was really fantastic and very eye-opening. Today, we are here again to discuss carbs and its importance. We're going to understand what is the right amount of carb that we should be consuming and what is the essence of GI and GL in carbs. Also, what is the role of carbs for our guts? To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group and our flag bearer on this journey with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him onto this virtual stage, guys. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. I just hope that you all had an early dinner. We keep repeating this over and over and over again because this is something which is so simple, so easy to do, and yet many of us had forgotten what was taught by Ayurveda, more than 5,000 years ago. So the worst thing you can do for your health is, have a late night dinner and go to sleep, and do no exercise, and it sort of just doesn't feel right for a good holistic health. Health is such an important issue that if you don't have good health, none of your other problems will matter to you, because once you have poor health, your health will become the main problem and you will never be able to focus on other problems. But if you got good health, okay, really there isn't any problem in the world that cannot be sorted out if you have good health. Good health is all about taking ownership and taking responsibility of your own health. God has just given you one body. Treat it like a temple. Because if you are not going to look after your own body, who else do you think is going to look after your body? No amount of power, money, influence, can help you do that. You can't let somebody else, take your sick bed in the hospital. You have to understand that you got one body, you got one life. You might as well live it well. Today, we are going to be talking about carbs. And this is a very important macronutrient and highly misunderstood for holistic health. Now, the rule of the thumb is very simple. The younger you are, and the more energetic you are, and you're expending more calories, the more carbs you can eat. The older you are, and you're not really expending much energy, the lesser carbs you must eat. But whether you are young or you are old, there are still a few rules of the thumb to be applied when you are eating carbs. Do not mix carbs. And that is the reason why on our platform, on our community, we keep on emphasizing over and over again, don't eat rice and roti together. Eat one type of carbs. Because when you try to mix carbs, they have different rates of digestion. And that sort of really doesn't do too well for your gut. And because of that, you start getting into this vicious cycle that your good bacteria, the balance of your good bacteria and the bad bacteria, goes out of whack. And then you got to start worrying about, again, resetting the gut. So if you are eating one carbohydrate at a time in a meal, it's fine. But if you're eating 2 or 3 or 4, okay, then it's certainly not going to help. Even if you're young, and even if you need more carbs, eat one type of carbs so that the gut finds it easy to digest. Do not put extraordinary strain on your gut health, because if you do, again, you'll have to, go back and take a lot of steps backwards to try and reset the gut.
So enjoy today this session, because today you're going to be listening from Manoj, okay, who had absolutely, he used to take pride in talking about, what he used to eat and, what his weight was, till he finally realized that he had to take charge. But once he got on the community and he learned what are the right things to do, he started adopting them, and then he made a huge transformation. His profile change is just absolutely amazing. So listen to Manoj very carefully, because he really has a good idea of what not to do and what to do. All right. So over to Manoj. थैंक यू वेरी मच फारूक। और जैसे कि मैं बार बार बोलता ही हूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप मेरे लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं वैसे ही होता, जैसा नहीं सॉरी, मैं वैसे नहीं होता, बहुत बिगड़ गया होता। क्योंकि 2014 में तो मुझे ब्लड प्रेशर आ गया था, 2016 में डबल हो गया था उसका डोज। और इमेजिन करिए पिछले 9 साल में और क्या क्या आ गया होता। अब मुझे रियलाइज़ है, और जो इस कम्युनिटी में रोज़ आ रहे हैं उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि अगर हम अपना कंट्रोल नहीं लें हेल्थ का अभी से, तो फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। ओके, सुना। अभी हम आते हैं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। स्लाइड्स आ रही हैं? कैन समबडी टेल मी? हेलो? Yes, Manoj. ओके, Yeah. थैंक यू वेरी मच। सो आज का टॉपिक, जैसा कि फारूक जी ने बताया था, कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर है। ये बेसिकली है क्या, कैसे होते हैं, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, है ना, इसके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले समझ आ जाए कि ये कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर किस फैमिली से हैं। तो बेसिकली वही फैमिली है जिसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, वो है खाना। हम 5 चीज़ खाते हैं। अब आप बोलोगे 5 तो नहीं खाते, हम तकरीबन 5000 टाइप के डिशेस को तो जानते होंगे, लेकिन नहीं, हमारा शरीर जो है ये 5 तरह की चीज़ों को जानता है। वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और फैट। इन 5 चीज़ों को हमारा शरीर जानता है। सो नाउ, हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, बॉडी उसमें से आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और हर एक चीज़ का अलग अलग फ़ायदा है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना होता है। फाइबर उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना होता है जितना हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्यों बात की जाए। तो अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं कि जो 5 चीज़ मैंने बताई, उसमें 5 में से 3 चीज़ें हैं। वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी देती हैं, हमें काम करने की ताकत देती हैं, जैसे हमारा बॉडी का फंक्शन और जो हम दुनियादारी के काम करते हैं दिन भर में, वो पूरा करने के लिए जो एनर्जी देते हैं वो 3 चीज़ें देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ओके, उसमें से अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें से 3 कलर की लाइन है। कार्बोहाइड्रेट ग्रीन कलर में दिखाया है, प्रोटीन ब्लू में है, और फैट जो है वो लाइट ग्रे कलर में है। ये क्या है? ये है मैप में, सॉरी इस ग्राफ में, कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे बॉडी को एकदम से एनर्जी देता है। अगर आप देखोगे उसकी लाइन सीधा ऊपर जा रही है, और जिस स्पीड से ऊपर जाती है उसी स्पीड से वो नीचे भी आती है। इसका मतलब है कि इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। ओके, लेकिन बहुत जल्दी वो एनर्जी कम भी हो जाती है। तो ये चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें और उस तरह से अगर हम अपना खाना प्लान करें तो फ़ायदा होगा। प्रोटीन अगर आप देखेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म भी होता है। और फैट है जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ही बॉडी से निकलता है। तो ये बेसिकली तीनों एनर्जी के जो काम करने का तरीका है, एनर्जी प्रोवाइडर के जो काम करने का तरीका है हमारे शरीर में, इस तरह से है। तो अगर आप ये समझ जाएं तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो जैसे कि इसका नाम में ही है, कार्ब एंड हाइड्रा। कार्ब मतलब कार्बन और हाइड्रा मतलब पानी। तो इसके अंदर कार्बन है और पानी के अंदर 2 चीज़ होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 3 चीज़ हैं, 3 चीज़ मिलके ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है।
कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देने का सबसे प्राइमरी सोर्स है। ओके, क्योंकि हम फैट उतना नहीं खा सकते और हम प्रोटीन भी उतना नहीं खाते हैं, और पॉसिबल भी नहीं होता बिकॉज वो कार्ब के कंपेयर में बहुत कम अवेलेबल है हमारे खाने में। ओके, तो ये जो कार्ब है ये हमारे बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स है, स्पेशली मसल और ब्रेन के लिए। तो इमेजिन करिए क्यों कार्ब को हम अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, ब्रेन के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे शरीर का। और इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है शुगर, आता है स्टार्ची चीज आते हैं, और फाइबर्स भी आते हैं, है ना। अब किस तरह से हमको एनर्जी मिलती है कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं? समझिए हम खाना खाए, खाना अंदर डाइजेस्ट होगा, जब डाइजेस्ट होना मतलब ब्रेक डाउन होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। स्पेशली अगर हम कार्ब की बात करते हैं तो शुगर या ग्लूकोज या एनर्जी, है ना, आप तीनों में से कुछ भी कर लो। तो शुगर मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब शुगर, वो ब्लड वेसल्स में जाएंगे, उसके बाद वो हमारे हर सेल्स में जाएगी, जितने हमारे सेल्स को जरूरत होगी उतना वो लेगा। और इंसुलिन ये काम करता है ले जाने का, है ना। तो जो हमारी जो जो नसें हैं ये हाईवे हैं या फिर रिवर स्ट्रीम्स हैं, और जो ब्लड है वो रिवर है, और उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं कैरी करने वाली। तो अलग अलग टाइप के जहाज हैं, जैसे कि इंसुलिन है जो शुगर को ले जाएगा, है ना। वैसे हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? सेल तक। क्योंकि हमारे हर सेल, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी है, और सबसे छोटा हिस्सा है हमारे शरीर का, और अगर हर सेल हमारा मजबूत रहेगा तो हमारा बॉडी मजबूत रहेगा। तो जब वो हर सेल में जाएगा तब जाके वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और फिर हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करेगा। और अगर जो शुगर या जो एनर्जी अंदर नहीं गया सेल के अंदर, वो उसमें अपने ब्लड में घूमेगा, और फिर जाके फैट में कन्वर्ट होके आपके शरीर में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये एनर्जी का काम शरीर के अंदर चलता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का होता है, एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सिंपल, वो प्योर कार्बोहाइड्रेट है, वो शरीर में गया, आपको एनर्जी दे और ख़त्म। ओके, ख़त्म मतलब वो ख़त्म हो गया, लेकिन एनर्जी आ गई शरीर के अंदर। अब यूज़ नहीं किया सेल्स ने अगर उसको यूज़ नहीं किया तो फैट बन के बैठ जाएगा उधर। जैसे शक्कर है, शहद है, ये प्योर फॉर्म है। ओके, मैदा भी है। जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब आप गेहूं का एग्जांपल लीजिए, गेहूं पे से अगर आपने स्टार्च और फाइबर निकाल दिया, जिसको कि क्या बोलते हैं बहुत लोग, है ना, आटा पिसाने के बाद उसको छानते हैं, तो जो उसका जो कड़क वाला पार्ट या मोटा वाला पार्ट जो बचता है लोग उसको फेंक देते हैं, जबकि वो बहुत ही काम की चीज़ है। तो वो फाइबर है। फाइबर स्टार्च अगर आपने निकाल दिया तो बचा जो हुआ है प्योर कार्बोहाइड्रेट, और जो प्योर कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल में आ जाता है, मैदा। और कॉम्प्लेक्स मतलब होल व्हीट आप बोल सकते हैं, कोई भी ग्रेन जो होल हो, अनपॉलिश्ड। ओके, फाइबर में आपके आ गए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और जो सिंपल है वो सिर्फ कार्ब है और कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने के फ़ायदे क्या हैं? अगर आप इनके हम थोड़ा आगे आगे डिटेल में बात होते रहेंगे। ये आपके वेट मैनेजमेंट में काम करता है, ये आपके हेल्थ, ये आपका बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिक जो हेल्थ है उसको अच्छा करता है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है ना। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलेंगी, प्लेन या सिंपल कार्बोहाइड्रेट से नहीं। ठीक है, आज के सिनेरियो क्या है आप देखते हैं। एक्चुअली हमें रफली 50% के आसपास हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड एनर्जी कैलोरी का 50% हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए, जो कि हम लेते भी हैं। ओके, इसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर होल ग्रेन हम खाते इतना है कि उसमें से हमको मिल जाता है। इनफैक्ट गांव में अगर आप जाके देखेंगे तो गांव में तो 70% तक वो लोग उससे खाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि 70% होल ग्रेन खाने के बाद भी अप्रोक्सीमेटली 10% वो लोग, मतलब गांव वाले लोग, प्रोसेस फूड से
एडिशनल कार्ब ले लेते हैं। और शहरों में तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है, वो 30% ले लेते हैं। तो अगर आप अभी टोटल मारोगे तो 50 + 30 इज 80%, जो कि बहुत ही बेकार है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर हम प्रोसेस फूड से अगर ले रहे हैं तो प्रोसेस फूड के अंदर तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके अंदर आपको सोडियम बहुत ज़्यादा मिलेगा, पोटेशियम बहुत कम मिलेगा, उसके अंदर आपको फाइबर्स नहीं मिलेंगे, उसके अंदर आपको पाम ऑयल वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, है ना। उसके अंदर आपको फिर प्रोसेस फूड है तो उसके अंदर आपको प्रिजर्वेटिव रहेगा, आर्टिफिशियल कलर भी होगा उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट उसमें मिले। तो आप सिस्टम समझ जो चल रहा है वो समझ के होंगे, 50% हमें खाना है, लेकिन 50% खाने के बाद हम प्रोसेस फूड खाते हैं, वो उसको बढ़ा देता है। और प्रोसेस फूड के अपने अलग से प्रॉब्लम्स हैं। अब आप थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स ब्लू में लिखा है, ग्रीन में जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो लॉन्ग चेन शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, और जबकि जो सिंपल है वो शॉर्ट चेन शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी से एनर्जी आपको दे देगा, है ना, ये सारी चीज़ें कर लेगा। कॉम्प्लेक्स जो है डाइजेस्ट होने को टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर है, फाइबर को टाइम होने को डाइजेस्ट होने को टाइम लगता है, ओके। और जबकि सिंपल है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ और तो है नहीं, उसमें खाली एनर्जी देना है आपको, अपना काम करके निकल जाना है, ओके। क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है कॉम्प्लेक्स, तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है जब आप खाना खाते हो। मुझे यहाँ के जॉब के बारे में कुछ ब्रीफ नहीं किया गया। ऑफ कोर्स किया गया, आई जस्ट डिड, बट डिटेल में इट इज अ ब्रीफ, हेल्थ इन ब्रीफ, नॉट इन डिटेल। साइंस लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो ब्लड शुगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की वजह से बहुत स्लो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इसलिए जल्दी से बढ़ता नहीं है। जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा, क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो गया है, तो जल्दी से ब्लड ग्लूकोज छोड़ेगा, और जल्दी से आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ओके। क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर फाइबर है, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगा वो, तो आपको काफ़ी देर तक आपका पेट भरा हुआ लगेगा आपको। जबकि सिंपल में ऐसा नहीं है, उसमें तुरंत आपको, जैसे कि आपको बताया था कि जल्दी से आपको एनर्जी देगा, फिर जल्दी से आपको फिर ऐसे लगेगा भूख लग गई है आपको। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा करके देखोगे तो लेस प्रोसेस्ड होते हैं, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा करके ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैदा, है ना, उसको पीसा, उसमें से फिर भूसी निकाला, उसके अंदर से फिर स्टार्च भी निकाल दिया, है ना, ये सब उसके अंदर कर दिया आपने, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हम बता ही रहे हैं, ऊपर से शुरू से पढ़ ही रहे हैं आपको। इसके अंदर डाइटरी फाइबर ना के बराबर होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर एनर्जी आपका बहुत देर तक रहता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए आपका जो एनर्जी लेवल आपके अंदर बहुत देर तक रहती है, जिसकी वजह से आप काम अच्छी तरह से कर सकते हो बहुत देर तक। जबकि उस सिंपल के अंदर ऐसा नहीं है। सिंपल के अंदर जल्दी आपको एनर्जी मिली, हो सकता है आपको आलस भी आ जाए, और जब तक आप काम करने के लायक बनो तब तक वो एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाए। क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टार्च भी है और उसके अंदर फाइबर भी है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन एडिशनल मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें से निकाला नहीं गया है। शुगर में वो सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम हो गया हो, और विटामिन भी बहुत सारे कम हो गया। कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है जैसा कैरेट हो गया, होल ग्रेन ब्रेड हो गया, बनाना हो गया, ओट्स हो गया और ब्राउन राइस हो गया। जबकि आप यहाँ पर देखोगे सिंपल में केक हो गया, सोडा एडिटेटेड ड्रिंक हो गया, थम्स अप, है ना, वगैरह जो भी है, शक्कर हो गया, सीरियल्स हो गए, फ्रूट जूस हो गए, है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, फ़ायदे के और एग्जाम्पल के लिए। अब एक और चीज़ें जो आप लोगों को थोड़ा समझ जाना चाहिए, ये मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था शुरुआत में, इसलिए मैं कई समय तक वाटरमेलन नहीं खा रहा था, ओके, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई था। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली ये है कि जब आपने कोई चीज़ खाई तो कितना जल्दी वो डाइजेस्ट होकर शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जितना जल्दी वो आपके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा,
उतना वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उसका। ये डायबिटीज के तो बहुत बेकार है ना। तो इसलिए मैं भी नहीं खाता था डर के कि नहीं ब्लड प्रेशर है शायद अभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर इसी को अगर आप ग्लाइसेमिक लोड के एंगल से देखो ना, ग्लाइसेमिक लोड क्या है? ग्लाइसेमिक लोड ये आपका उसका शुगर कंटेंट, उसका शुगर कंटेंट, क्वांटिटी और शुगर रिलीज करने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये तीनों चीज को कंपेयर करके कैलकुलेट करके उसका ग्लाइसेमिक लोड बनता है। दोनों के अलग अलग पैरामीटर हैं, अगले स्लाइड में आपको बताएंगे हम। लेकिन जैसे ही अगर आप ध्यान देते हो कि अगर इसका अपने वाटरमेलन को आपने कंट्रोल पोर्शन में खाया तो ग्लाइसेमिक लोड उसका बहुत कम हो जाता है। 5 को लो इसलिए लिखा गया है क्योंकि 0 से लेकर 10 तक उसको लो में गिना जाता है, जबकि 55 के ऊपर ये थोड़ा हाई साइड में हो जाता है और 75 के ऊपर तो बहुत हाई हो जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं। तो इस सीट में आप देखेंगे तो इसमें तीनों आपको दिखाया गया। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो लेवल दिखाया गया है, लो है अप टू 55, मीडियम है 56 से लेके 69 और हाई है 70 से लेके ऊपर। ओके, जबकि ग्लाइसेमिक लोड 1 से 10 तक लो गिना जाता है, मीडियम मतलब 11 से लेके 19 तक होता है और 20 के ऊपर उसको हाई गिना जाता है। ये डिफरेंस है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ उसके रिलीज करने की स्पीड को देखता है, और जबकि यहाँ पर वो दोनों देखता है, स्पीड भी देखता है और क्वांटिटी कितना खा रहे हो और कितना ग्लूकोज रिलीज करता है, इस चीज को कैलकुलेट करके ग्लाइसेमिक लोड देखता है। तो ग्लाइसेमिक लोड मेजर करना ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसको इस तरह से देखिए आप, एक ही गार्डन है, सपोज एक जगह पे एक लेफ्ट वाला ग्रीन फाउंटेन लगा है जो बहुत स्लो पानी छोड़ रहा है, और एक दूसरा राइट साइड में है जो एकदम स्पीड से पानी छोड़ रहा है। जहाँ स्पीड से पानी छोड़ेगा उसके आजू बाजू में जल्दी प्लांट आपको दिखेंगे भी नहीं, है ना, और बहुत जल्दी मेसी कर देगा। जबकि ये वाला ग्रीन वाला जो आस्ते आस्ते पानी छोड़ रहा है, वो आस्ते आस्ते पानी देगा पौधों को, पौधे अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करेंगे, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लेंगे और फिर अच्छे से ग्रो होंगे, है ना। अब ये एक चार्ट है, इस चार्ट में आप देखोगे कितना फर्क पड़ जाता है। अब इसको देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा देखने को, जैसे कि वाटरमेलन ही एक देख लीजिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाज इज 72, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 4 हो जाता है। देखा आपने? आप इसको भी देखिए, होल व्हीट ब्रेड आई एम सेइंग, नॉट मैदे का नहीं, होल व्हीट ब्रेड 69 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो पे आ जाता है, 9 पे आ जाता है। कैरेट देखिए 47 से 3 पे आ गया, है ना। तो इस तरह का फर्क पड़ता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप फॉलो करते होंगे तो उसके बजाय ग्लाइसेमिक लोड को फॉलो करिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, अगर किसी को चावल खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, और हिंदुस्तान में तो हम तो चावल प्रधान देश हैं, है ना, कुछ स्टेट को छोड़ के जहाँ पर सिर्फ गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है। लो जीआई व्हाइट राइस हमारे पास बिफैच ब्रांड से, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड तो और भी कम हो जाएगा। ओके, जबकि अगर आप प्रीवियस स्लाइड में आप देखेंगे तो व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 है, विच इज़ हायर, 70 के ऊपर। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाली 52 है। तो दोज वांट टू ट्राई, दे कैन ट्राई दिस आउट, है ना। ये आपको बहुत देर तक फिलर रखता है, बहुत देर तक भूख नहीं लगने तक। कई लोग कहते हैं कि चावल खाने के बाद बहुत जल्दी भूख लग जाती है, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसका ये आहिस्ता आहिस्ता से अपना शुगर रिलीज करेगा। ओके, तो अभी कार्ब्स को समय पे खाने का फायदा क्या है? ओके, 3 तरह के फायदे आप देख सकते हैं। एक, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है अगर आपने सही टाइम पे कार्ब्स खा लिए। जैसे एग्जांपल बोलने का मतलब ये है कि अगर आप रात को कार्ब ना खा के सुबह या दोपहर को खाओगे तो आपको स्लीपीनेस नहीं आएगा। अगर आपने टाइम पे खाया, बिकॉज सुबह सुबह आप उठे हो और उठने के बाद आपने कार्ब खाया तो जल्दी नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे और वर्कलोड आपको कम लगेगा, बिकॉज आप एफिशिएंटली काम करोगे। इसलिए इंसुलिन सेंसिटिविटी, सैटिस्फैक्टी और मेटाबॉलिक हेल्थ को किस तरह से इंप्रूव करता हो देखिए आप, क्योंकि आपने टाइम पे खाया है, आप गलत टाइम पे नहीं खा रहे हो, उस वक्त खाया जब आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा अच्छा है, तो उस वक्त खाने से आपको इंसुलिन का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। इंसुलिन क्योंकि ये शुगर को ले जाने वाला व्हीकल है,
सेल तक, तो अच्छी तरह से काम करेगा, कैलोरी आपकी कंट्रोल में रहेगी और आपका फैट्स ऑक्सीडेशन कंट्रोल में रहेगा। ओके, आपकी मेंटल हेल्थ को आप देखेगी, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है, आप स्ट्रेस हार्मोन आपके कम है, तो ऑब्वियसली आपकी मेमोरी इंप्रूव रहेगी, आप अच्छी तरह से काम करोगे, आप अच्छे अलर्ट रहोगे, आप अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दे सकते हो, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही, बेसिकली आप लेजी नहीं हो इसलिए। ओके, तो कितना, अब आ जाते हैं हम फाइबर पे। आप ये देखिए कि हमें कितना फाइबर खाना चाहिए, डिपेंड अलग अलग है मेन के लिए और वुमेन के लिए, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हो दिन भर में। अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि बस आप आराम ही ज़्यादा करते हो, एक ही जगह ज़्यादा बैठे रहते हो, तो आपको 30 ग्राम पर डे डाइटरी फाइबर खाना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत हिलते डुलते हो तो 40 ग्राम, और आपका हैवी वर्क होता है, मतलब मूवमेंट ज़्यादा होता है अगर आपका, तो देन यू शुड हैव 50 ग्राम डाइटरी फाइबर पर डे। उसी तरह लेडी के लिए ये 25, 30 और 40 है। फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। सोल्यूबल जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, पानी में घुल जाने वाला। ओके, ये आपकी सैटिस्फैक्शन को प्रमोट करता है, मतलब बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगने देता, क्योंकि फूल जाता है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने सब्जा देखा होगा, पानी में डालो तो थोड़ा फूल जाता है ना, तो उस तरह से, तो क्योंकि फूल जाता है तो बहुत देर तक रहता है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि जितने कुछ जो डाइजेस्ट नहीं होने वाले फैटी होंगे तो उसको भी वो पकड़ लेता है साथ में, और साथ में निकाल देता है बाहर अपने। ओके, आपके गट के फ्लोरा को सपोर्ट करता है। गट का फ्लोरा को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको बढ़ाने में सपोर्ट करेगा, बुरे बैक्टीरिया को घटाने में सपोर्ट करेगा। ओके, आपका ब्लड शुगर लेवल इम्प्रूव करेगा। बोलने का मतलब ये है कि ब्लड आस्ते आस्ते रिलीज होगा, शुगर आस्ते आस्ते रिलीज होगा ब्लड सेल के अंदर, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ब्लड में नहीं दिखेगा। ये आपको ज़्यादातर किस में दिखता है? एप्पल्स में है, बीन्स में है, नट्स में, ओट मिल, पोटैटो, लेंटिल्स, दाल वगैरह में है। ओके, ये आपके गट को सही तरह से फंक्शन करने में मदद करता है ना। बोलने का मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। अब आ जाते हैं इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मतलब ये है जो पानी में घुलते नहीं हैं। ओके, तो जब घुलते नहीं हो तो क्या करेंगे, हमारे बॉडी से निकल जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते ये फाइबर क्या करते हैं, झाड़ू का काम करते हैं, है ना। ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करते हुए निकलते हैं। ये जब भी हम सुबह स्टूल निकालते हैं तो उसको बल्कि बनाते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट तो हो ही नहीं रहा, आपने जैसा खाया वैसे ही आ रहा बाहर, है ना। ये आपके बोल हेल्थ को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है अच्छा रहने के लिए। कहाँ मिलता है? होल व्हीट ग्रेन में, लीफी वेजिटेबल में, मतलब हरे पत्ते में, हरे पत्ते की सब्जियों में मिलेगा, क्विनोआ में मिलेगा, ब्राउन राइस में मिलेगा, और जितने भी आपको सीड्स हैं ना उसमें मिल जाएगा आपको। अब फाइबर अगर आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है तो सबसे बेस्ट एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट का फाइबर। इसकी खासियत ये है कि ये आप आसानी से ले सकते हो। आसानी से लेने का मतलब ये है कि इसको सिर्फ पानी में मिलाना है, घोलना है और पी जाना है। जब आप इसको घोल के पियोगे आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ खाया, आपको लगेगा आप सिर्फ पानी पी रहे हो। ये इस तरह से पानी में घुल जाता है, ना कलर चेंज करता है ना कुछ चेंज करता है पानी का, वो घुल जाता है। इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ यूज़ करी हुई हैं, ये तीनों नाम है, इनुलिन है, मेल्टोडेक्स्ट्रिन है, और पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड गुआर गम है। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो मेल्टोडेक्स्ट्रिन है ये मकई से निकलता है, इनुलिन है ये चिकोरी, आपने नाम सुना होगा, है ना, कॉफ़ी में मिक्स किया जाता है चिकोरी, दिखने में मूली जैसा होता है, रेडिश जैसा दिखता है वो, लेकिन रेडिश नहीं है। ओके, उसके अंदर इनुलिन होता है तकरीबन 15-17% उसके रूट में। ओके, तो वहाँ से उसको उसमें से निकाला गया है। और ग्वार की फली आपको पती होगी, गवार बोलते हैं हम लोग। ओके, उसके बीज से इसको निकाला जाता है। फ़ायदा जो आपको अपने फाइबर के फ़ायदे बताए सब वही है, आपके गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करेगा, आपकी सैटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपको नींद नहीं आने देगा, आप पाचन शक्ति अच्छे रखेगा, आपका हर चीज़ जो जो अभी फ़ायदा क्या, ये सारे फ़ायदे इसके आपको
इसके अंदर मिल जाएंगे आप, न्यूट्रीलाइट का फाइबर। अब फाइबर किस तरह से आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि फाइबर के अंदर ना जो अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर हैं उनके लिए खाना होता है, ओके, जिसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। ओके, ये आपके बॉडी को मेटाबॉलिज्म के लिए मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। ओके, ये आपको भूख नहीं लगने देता, तो अननेसेसरी आप कुछ गलत चीज़ खाओगे नहीं, जिसकी वजह से आपका गट फिर अपसेट नहीं होगा। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, ये इन्फ्लेमेशन को लोअर करने की कोशिश करता है। ओके, और जैसे कि हमको बताया था मैंने आपको कि अगर वो फाइबर अगर इनसोल्युबल फाइबर है तो आपका पूरा गट सिस्टम को पूरा साफ करके निकल जाता है, जिसके वजह से टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर नहीं रहते। तो इस तरह से फाइबर आपके गट को मदद करता है। गट का मतलब लोगों को पता होगा, तो ये मत समझिएगा सिर्फ पेट है। गट इज राइट फ्रॉम माउथ टिल द एनस। ओके, नाउ फाइबर खाने का सही टाइम सुबह क्यों है? क्योंकि अगर आपने फाइबर सुबह सुबह खा लिया तो आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, है ना। नेक्स्ट फूड इनटेक का टाइम आपका बढ़ जाएगा, आपको ऐसा बहुत देर तक लगेगा कि आप भरे हुए, पेट आपका भरा हुआ है। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इम्प्रूव करके रखेगा और गैस्ट्रिक एम्पैथी को डिले करेगा। ओके, तो ये सारे सुबह सुबह खाने के फ़ायदे हैं फाइबर को। फाइबर आपको खाने में अच्छी तरह से आए इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आप ये देखो लेफ्ट में जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है वो चीज़ें हैं जिससे आप न खाओ और उसके जगह पे आपको जो हैव वाली चीज़ें हैं वो खा सकते हो। जैसे आलू पराठा को आप रिप्लेस कर सकते हो पनीर पराठा, दाल पराठा या कोई वेज पराठे के साथ। ब्रेकफास्ट सीरियल के जगह पे आप दलिया खा सकते हो, वाइट ब्रेड के जगह पे होल व्हीट ब्रेड खा सकते हो। वड़ा पाव को आप इडली सांभर से कंपेयर शिफ्ट चेंज कर सकते हो, वाइट राइस को ब्राउन राइस से, आइसक्रीम को आप योगर्ट से कर सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक को आप लाइम वाटर से कर सकते हो, फ्रूट जूस को होल फ्रूट से कर सकते हो। फ्रूट जूस के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस है, जो भी मुझे बोलता है मैं फ्रूट जूस रोज पीता हूँ तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, जूस सिर्फ मरीजों के लिए है। जब तक आप फ्रूट को चबा के खा सकते हो, आपके दांत सलामत हैं, आप कभी जूस मत पीजिए, सिर्फ होल फ्रूट पीजिए, होल फ्रूट खाइएगा। फ्राइड चिकन और फिश के जगह पे आप उसको ग्रिल कर सकते हो, आप उसको स्टीम कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, है ना। इस तरह से आप फूड को स्वैप करिए, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। खाने में आपको पेयरिंग करना जरूरी है। पेयरिंग का मतलब ये है कि सपोज अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो उसको आप किस तरह से क्या चीज़ ऐड करोगे ताकि जो आपका मेन खाना है उसके अंदर जो कमी है वो कैसे पूरी हो जाए। हाई जीआई फूड्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को अगर आप खा रहे हो तो साथ में आप कुछ प्रोटीन खाइए, कुछ फाइबर वाली चीज़ खाइए, होल ग्रेन के साथ में आप दाल वगैरह कुछ खाइए, है ना। अपने नॉन स्टार्ची वेजिटेबल को ऐड करिए। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल इन द सेंस जैसे स्टार्ची वेजिटेबल में आप मकई बोल सकते हो, स्टार्ची वेजिटेबल में आप आलू बोल सकते हो, स्टार्ची वेजिटेबल को आप शकरकंद बोल सकते हो, है ना। तो ये स्टार्ची वेजिटेबल है, उसके जगह पे आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल को आप ऐड सकते हो, ग्रीन्स को ऐड कर सकते हो। किसी भी चीज़ का आप लो जीआई अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो या फिर लो जीएल अल्टरनेटिव को यूज़ कर सकते हो। और माइंडफुल कुकिंग टेक्निक को यूज़ करिए। अब ये माइंडफुल कुकिंग टेक्निक, माइंडफुल ईटिंग, अगर आप यहाँ पर आते रहेंगे तो आपको माइंडफुल के ऊपर भी और कुछ सीखने मिलेगा, वो एक अलग ही चैप्टर है। ओके, फाइबर इंटेक बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप ये देखिए, चूज होल ग्रेन ओवर रिफाइंड ग्रेन, है ना, रादर देन वाइट राइस आप ब्राउन राइस खा सकते हो। इसका बोलने का मतलब ये है, ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, भले वो अमीर हो चाहे गरीब हो, 90% पीपल डोंट ईट जितना उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल दिन का खाना होता है, 90% पीपल। और अगर वो सिर्फ ये भी एक चेंज कर देना अपने शरीर के अंदर, बहुत फ़ायदा आएगा, बहुत फ़ायदा। मैं तो यहाँ बोल सकता हूँ कि अगर किसी को वड़ा पाव खाना है, समझो इमरजेंसी में वड़ा पाव खाना हो ना, वड़ा पाव एक खा लो और साथ में एक एप्पल खा लो, है ना, क्योंकि हमने उसका फाइबर ऐड कर दिया उसके अंदर सोल्यूबल फाइबर डाल दिया उसके अंदर। वो मैदे के इफेक्ट को बहुत कम करेगा, जो इल इफेक्ट है उसके।
कुछ भी नाश्ता करना हो तो कोई भी चीज़ ना खाएं, उसके पे नट्स, सीड्स, ड्राइड फ्रूट और पॉपकॉर्न खा सकते हैं। आप अपने खाने में बीन्स ऐड कर सकते हैं, दाल ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, सलाद ऐड कर सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाने को तो सलाद से ही शुरू करना चाहिए मेरे, है ना, मेरे ख्याल से नहीं, ये हकीकत है और वैसे ही करना चाहिए। कुछ भी आप खाना खा रहे हो उसमें थोड़ा सा आप फ्लेक्सीड ऐड कर लो, योगर्ट ऐड कर लो, सीरियल ऐड कर लो, स्मूदी ऐड कर लो, है ना। तो ये आपका जो चीज़ें आपको नॉर्मल खाने से नहीं मिल रही हैं, जो नॉर्मल खाना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये लाइफस्टाइल के हिसाब से जो नॉर्मल खाना हो चुका है वो हिसाब से नहीं है। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं तो उसको सप्लीमेंट कर देगा। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी दबा के पीजिएगा। ओके, 3 लीटर को एक टारगेट रखना है आपने। वैसे इसके ऊपर एक अलग कैलकुलेशन है, वो आप कर सकते हो। एक बार बेंच मार्क 3 का पकड़िए। और अंत में जो हम सब हमेशा बोलते ही हैं, आपको शाइन करना है। हर सुबह उठ के आपको धन्यवाद देना है। ओके, किसको? इस प्रकृति को। आप अपने न्यूट्रिशियस फूड खाने हैं अपने। आपके इंटेंशन क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या पाना है, कहाँ जाना है। ओके, कोई नई चीज़ सीखने के लिए आपके अंदर एक तमन्ना होनी चाहिए, और नई चीज़ सीखनी चाहिए एवरीडे। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। सो आई एम डन, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रुचिता। थैंक यू मनोज। आई थिंक बहुत क्लियर है कि कार्ब्स जरूरी हैं, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना कंज्यूम करना है और किस तरीके से फाइबर के साथ उसे बैलेंस करना है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस we can unmute and ask. All right. Thank you, everyone. You've been a great audience. See you in the next session. Good night. Stay safe.